بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج جو ہے ہم الحمدللہ الدرس الرابع والعشرون پڑھنے جا رہے ہیں ہم، لیسن نمبر 24، اور اس کے اندر کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، صرف عدد والا فارمولہ ہے نا، گنتی کا جو سارے رول ہے انہوں نے سمجھا دیے ہوئے، جو کہ کافی حد تک ہمیں پتہ بھی ہے یہ ہے نا۔ اس پر ایک نظر اور ڈالیں گے درس کے اندر جو رول بتا دیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو ایک ریفرنس کا ایک مل جائے آپ کو اس کا۔ تو یہ کہہ رہے کہ عدد کا مطلب گنتی ہوتا ہے، نمبر ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے گا طالب واحد، دیکھیے گا 1 اور 2 والا یہ انہوں نے دیکھیے گا واحد الگ الگ بریک کیا ہوا ہے انہوں نے نا، طالب واحد اور طالبان اثنان، اس کو الگ کیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ بریکٹ ہے نا، الگ الگ وہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ فارمولہ ایک ہے نا، اور 3 سے لے کر جو ہے نا 10 تک کا فارمولہ الگ ہے، دیکھیے گا بریک کیا ہوا ہے انہوں نے، ہے کہ نہیں، بریکٹ میں الگ کیا ہے انہوں نے، بریک پہلے دو کو الگ کیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد اور اثنان کا فارمولہ، تو واحد اور اثنان کا فارمولہ کیا ہے، ہم کو پتا ہے کہ بھی ایک چیز عدد ہے اور ایک چیز معدود ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، عدد اور معدود۔ تو طالب واحد یہ عدد معدود صفت موصوف کہیں گے ہم اس کو یہاں پر اس حال میں، یہ صفت اور موصوف کہیں گے یہاں پر، طالب واحد اور طالبان اثنان ہے نا۔ تو طالب واحد ایک اور 2 کے اندر بہت سمپل سا ہے کہ طالب واحد، اور لیکن طالبۃ کہیں گے تو طالبۃ واحد نہیں کہیں گے، طالبۃ واحدۃ کہیں گے ہم، ہے نا۔ تو طالب واحد اور مؤنث ہوگا تو کیا پڑھیں گے ہم اس کو، طالبۃ واحدۃ پڑھیں گے، ہے نا، جیسا کہ بریکٹ میں ادھر دیا ہوا ہے طالبۃ واحدۃ، ہے نا۔ اور 2 اسٹوڈنٹ تو ہم کہیں گے طالبان اثنان، طالبان اثنان 2 اسٹوڈنٹ، لیکن 2 فیمیل اسٹوڈنٹ ہو تو طالبتان کہیں گے اب ہم، لیکن اب اثنتان کہیں گے ہم۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ مذکر اور مؤنث کی شکل بدل رہی ہے، واحد کا مؤنث کیا پڑھیں گے ہم، واحدۃ، اور اثنان کا مؤنث کیا پڑھیں گے ہم، اثنتان، اثنان کا کیا پڑھیں گے ہم، ہاں، مؤنث میل فیمیل یاد رکھنا ہے اس کو، مذکر مؤنث۔ اب یہاں سے 3 سے لے کر 10 تک کا رول دیکھیے گا، 3 سے لے کر بلکہ جو ہے نا یہ 12 تک ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہوا، 3 سے لے کر 10 تک کا دیکھیے پہلے، اس کے بعد جو ہے نا 11 سے رول چینج کریں گے ہم۔ تو 3 سے لے کر 10 تک کا رول یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھی 3 اسٹوڈنٹ فیمیل ہے نا، تو کہیں گے ثلاثہ، تو یہ اب ہمارا رول واپس آ گیا عدد اور معدود والا، ہے نا۔ یہاں پر اب ہم کہیں گے عدد اور معدود، اب یہاں پر پہلے صفت موصوف کہہ رہے تھے ہم، اس کو ہم صفت موصوف کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کو جو ہے نا ہم عدد معدود کہیں گے اب ہم، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے گا طلاب معدود ہے اور ثلاثۃ کو ہم عدد کہتے ہیں، عدد اور معدود یاد رکھیے گا، ہے نا جی، عدد اور معدود کا لفظ یاد رکھیے گا۔ عدد کا مطلب گنتی، کاؤنٹنگ، اور جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم اس کو معدود کہتے ہیں ہم، تو 2 یہ لفظ یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارا معاملہ آسان ہو جائے۔ تو ثلاثۃ طلاب، ثلاثۃ طلاب جو معدود ہے مذکر ہے، تو اس کا جو عدد ہے اس کا اپوزٹ آئے گا مؤنث۔ تو یہ رول چلے گا 3 سے لے کر 10 تک۔ یہ رول کہاں سے کہاں تک چلنا ہے، یہ رول 3 سے لے کے 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک چلے گا یہ، ہے نا، 3 to 10 یہ رول یاد رکھنا ہے ہمیں۔ تو اگر طلابن کے بجائے اگر طالباتن ہوگا تو ثلاثتن کو ہم ثلاثن پڑھیں گے۔ ثلاثتن کا مذکر کیا آئے گا ابراہیم صاحب، ثلاثتن، مذکر مؤنث کی شکل یاد رکھیے گا، ثلاثتن، ٹھیک ہے۔ اربعتن، مذکر مؤنث بولیے گا، 5 کو بولیے مذکر مؤنث، کوئی بھی بولیے، پہلے ایک کوئی بھی ایک فالو کیجئے، ایک مذکر بولیے اس کا مؤنث بنائیے، ہاں ایسا بولیے، پھر 6 کا بنائیے، ستن، ہاں 6، ہاں 7 کا بولیے مذکر مؤنث، 7، ہاں 7، اور 8 کا بولیے ثمانین۔ اب یہاں پر ثمانین نہیں، ثمانین کہیں گے، وہ رول ہم بعد میں بتائیں گے، ثمانین اور ثمانیتن، ثمانیتن، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن یہاں پہ ثمانیتو لکھا ہوا ہے، ہاں مؤنث ثمانیتن نا،
समानी लिखा हुआ है मुअन्नस। हाँ तो वो आप उसको डिटेल हम बाद में बताएंगे उसका ना, क्योंकि जब ये एक सिंगल वर्ड पढ़ेंगे तो समानीन कहेंगे सिर्फ, जब मुदाफ पढ़ेंगे तो समानी पढ़ेंगे उसको, उसके साथ कोई लफ्ज लगाएंगे मादूद तो फिर वैसा पढ़ा जाएगा उसका, है ना। ओके। तो वो अच्छा 9 को बोलिए मुदक्कर और मुअन्नस, तिस्उन तिस्अतुन और 10 को बोलिए अशरुन अशरतुन। तो अब ये जो ना 3 से लेकर 10 तक का फार्मूला आपको ये याद रखना है कि अदद और मादूद एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे हम, अपोजिट। क्लियर हो रही की बात मैंने जो कहा है वली साहब? बिल्कुल। अगर आपको कहना होगा कि 3 घर और 3 गाड़ियां, अब हम कोई भी लफ्ज लेते हैं, तालिबुन तालिबतुन को छोड़ दीजिए, रूल अगर आपको समझ में आ गया तो हर जगह ये रूल जो है ना अप्लाई होगा फिर, है कि नहीं। तो अगर आपको कहना होगा 3 घर, तो अब जो है ना इसी रूल को फॉलो करके क्या कहेंगे? सलासतुन बैतुन, सलासतुन। हाँ बोलिए, जो आता है माइंड में बोलिए। सलासतुन, हाँ सलासतुन, जो आता है माइंड में बोलिए आप। 3 घर तो कैसे बोलना चाहिए हमने? सलासतुन बैतुन। अच्छा आपको क्या, आपके माइंड में क्या आता है? 3 घर। 3 घर। सलासतु बुयूतिन। हाँ बैतुन, सलासतुन बैतुन नहीं आएगा, जमा इस्तेमाल करेंगे और मजरूर इस्तेमाल करेंगे, बियूतिन। ओके। 2 चीजें सलासतु बियूतिन। ऐसा। ओके। मुदाफ और मुदाफ इलैह का स्टाइल है वो, ओके। ठीक है नहीं। तो मादूद को हम क्या इस्तेमाल करेंगे 3 से लेकर 10 तक? सलासतु बियूतिन। तो मादूद ये मुदाफ एक तो एक फार्मूला, एक मोटा सा रूल यह है कि अदद और मादूद एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस में। ओके। एक बात क्लियर है। जी। दूसरी और बातें उसमें 2 और यह है कि उसको जो है ना जमा पढ़ेंगे और मजरूर पढ़ेंगे मादूद को। हाँ जी, जमा और मजरूर। मादूद को क्या पढ़ेंगे हम? जमा मजरूर। सलासतुन बैतुन नहीं कह सकते अब हम। हाँ जनाब इब्राहिम साहब, हम जो है ना सलासतुन बैतुन नहीं कह सकते, सलासतुन बैतुन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बैतुन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सलासतुन बुयूतिन। सलासतुन नहीं, सलासतु बुयूतिन। बुयूतिन है ना, उसको तनवीन हटाना पड़ेगा, मुजाफ की शक्ल इस्तेमाल हो रही है वो। सलासतु बुयूतिन। सलासतुन नहीं कहेंगे अब हम, मुदाफ इलैह की वजह से सलासतु हाँ हो तो जाएगा। अब जो है ना जो मुदाफ इलैह है या मादूद है उसको हम जमा पढ़ेंगे और मजरूर पढ़ेंगे। मजरूर इसलिए कि मुदाफ इलैह के हिसाब से चल रहा है वहाँ, और जमा इस्तेमाल होगा। ये बात होगी क्लियर? अगर ये कहना होगा 3 गाड़ियां 3 कारें, तो अब कैसे कहना चाहिए इसी रूल को? सलासु सय्यारातिन। सलासु सय्यारातिन। सलासु सय्यारातिन। पहले कह रहे थे हम सलासतो बुयूतिन, क्या कह रहे थे पहले? सलासतो बुयूतिन नहीं कह रहे पहले, जी जी सलासतो कह रहे कि नहीं हम? सलासतु बुयूतिन। हाँ तो सलासतुन को मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं हम? जी। क्यों सलासतुन को मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं? अदद और मादूद हमेशा अपोजिट चलते हैं। बुयूत जो है ना, जो मादूद है मुज़क्कर है, अपने जिन्स में हमेशा वो बस मादूद को देखना है आपने। आपने किसको देखना है? मादूद को देखना है। मादूद मुज़क्कर है तो अदद को मुअन्नस इस्तेमाल करना है, बस खलास। अदद को नहीं देखना आपने, किसको देखना आपने? मादूद। आपने मादूद को जाकर देखना है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है ना। तो मुअन्नस है तो अदद को मुज़क्कर कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो सलासतो बुयूतिन है ना, सलासतु बुयूतिन। अगर कहना होगा कि भी 4 डॉक्टर, तो क्या कहेंगे हम? अरबाअतु। अच्छा हाँ चलिए बोलिए, 4 डॉक्टर। अरबाअतु। हाँ तब अतिब्बा अतिब्बा है ना। अरबाअतु अतिब्बा। हाँ तबीब की जमा क्या कहेंगे हम? अतिब्बा। तबाइब नहीं होगा ना? तबीब नहीं, तबीब की जमा अतिब्बा नहीं पढ़ा आप लोगों ने बुक 1 में? अच्छा सारे जमा जो है ना याद रखने आए हैं ना लफ्जों के। तबीब की जमा अतिब्बा। अच्छा और फीमेल अगर डॉक्टर हो तो क्या कहेंगे फिर? 4 फीमेल डॉक्टर। तबीबतुन की जमा क्या आएगी? अब मुअन्नस क्या बन गया? तबीबतुन ना। तो उसकी जमा क्या बनेगी? तबीबतुन की जमा क्या बनाते हैं हम? तबीबात। नहीं, अतिब्बा तो तबीब की जमा अतिब्बा मुज़क्कर। तबीबतुन की जमा तबीबतुन की जमा तबीबातुन, मुदर्रिसतुन की जमा मुदर्रिसातुन, है ना। और तबीबुन की जमा अतिब्बा कह रहे हैं हम वहाँ, लेकिन जब मुअन्नस हो गया तबीबतुन तो उसकी जमा क्या कहेंगे हम? तबीबातुन। अलिफ और ता के साथ, है ना। मुदर्रिसतुन की जमा क्या कहेंगे हम? मुदर्रिसातुन। फीमेल की बात आएगी तो अलिफ और ता, है ना। मुदर्रिसातुन। मुहंदिसतुन की जमा मुहंदिसातुन, अलिफ और ता। जमा जो है ना बना जमा सालिम मुअन्नस है वो। अच्छा ये तो रूल समझ में आ गए। फिर तो आगे बढ़े हम। ये 10 तक रूल चलेगा, ये क्लियर है बात? सिंपल है। 11 और 12 का रूल फिर वही है जो कि हमने 1 और 2 का पढ़ा था। हाँ जनाब, 11 और 12 के अंदर वही रूल है जो हमने 1 और 2 में पढ़ा था।
यानी मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस। सिफत तो मौसूफ। तालिबन चूंकि मुज़क्कर है तो हम अहद अशरा तालिबन, अहद अशरा, तालिबन, हाँ, और 12 है तो इतना अशरा तालिबन, तालिबन। लेकिन तालिबन के बजाय अगर तालिबतन है तो उसको क्या पढ़ेंगे हम? इहदा अहद अशरा के का बन जाएगा अहद एहदा अशराता, एहदा। अशरा, तो अहद अशरा का मुअन्नस क्या बनेगा? एहदा अशराता, अहदा अशरा, है नहीं? और इतना अशरा जो हमने पढ़ा यहाँ पर, इतना अशरा इस्नता अशरा। तालिबन, इतना अशरा तालिबन, तालिबन, तो उसका मुअन्नस क्या बनेगा? इस्नता अशरा, इथनता अशरता, इथनता अशरा। अशरता तालिबतन। ये भी क्लियर है? जी बिल्कुल। तो वाहिद और इथनैन इसके अंदर जो है ना, जो है ये दोनों जो है ना एग्जम्प्टेड है ना, सिफत मौसूफ से हाँ एक जैसे रहेंगे वो, है ना। बाकी जो रूल फिर वही सलासत अशरा जो है ना 13 से हमारा जो है फिर वही रूल आज शुरू हो जाएगा जो सलासा से शुरू हुआ था हमारा। सलासा से जो रूल शुरू हुआ था सलासा से अशरा तक। वही रूल यहाँ पर आएगा फिर सलासत अशरा, सही। है ना। तो हम कहेंगे 13 स्टूडेंट तो क्या कहेंगे? सलासत अशरा तालिबन। 13 स्टूडेंट को क्या कहेंगे इब्राहिम साहब? 13 सलासता अशरा अशरा तालिबन, तालिबन, है ना। सलासत अशरा, सलासता अशरा तालिबन। हाँ, चूंकि तालिबन मुदक्कर है तो फिर जो है लेकिन ना अशरा सेम रहेगा, अशरा वो सेम रहेगा जी। पहला हिस्सा अशरा मादूद के हिसाब से हिसाब से चलेगा। रहेगा जी, पहला हिस्सा चेंज होगा अशरा बस। पहला, और जो जी, पहला जी, हिस्सा अदद का है जो पहला टुकड़ा है वही चेंज करेंगे वो हम उसके अपोजिट जाएगा मादूद जी। के। अदद का पहला टुकड़ा ही चेंज करना है हमने। तो सलासत अशरा तालिबन। सलासता लेकिन अगर अशरा फीमेल तालिबन। स्टूडेंट है तो क्या कहेंगे? सलासत सलासा अशरा नहीं कहेंगे, सलासा अशरता, तालिबन, अपोजिट कर देंगे उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 से लेकर कहाँ तक जो है ना ये चलेगा 19 तक। लेकिन इधर जो तालिबतन है वो सिंगुलर ही इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, यहाँ सिंगुलर इस्तेमाल होगा अब ये सिंगुलर इस्तेमाल होगा जी। 13 से सिंगुलर इस्तेमाल होगा, 3 से लेकर 10 तक जो है ना जमा इस्तेमाल होगा। 13 दोबारा बता दीजिएगा। 13 से 20 वाला। हाँ, 30 से 20 वही है कि अदद का जो पहला टुकड़ा है वो अपोजिट रहेगा। जैसे तालिबन तालिबतन, तो 13 स्टूडेंट को मेल की शक्ल में कहेंगे सलासता अशरा तालिबन। तालिबन, क्या कहेंगे हम? सलासता अशरा तालिबन, अशरत नहीं, सलासता अशरा बगैर ताके। सलासत अशरा, अदद के दो टुकड़े हो गए, सलासता अशरा सलासत अशरा। दो टुकड़े हो रहे कि नहीं? जी बिल्कुल। अदद का पहला टुकड़ा चेंज करेंगे सिर्फ, है नहीं? इसमें अदद कैसे? मुअन्नस। तालिबन मुज़क्कर है तो सलासता को मुअन्नस बनाएंगे, अशरा तो वैसी रहेगा सलासता अशरा। यानी हमने अदद का पहला टुकड़ा ही जो है ना अपोजिट करेंगे आप मादूद के। इससे पहला टुकड़ा, बाकी मादूद अदद के से पहला टुकड़ा अपोजिट होगा। हाँ बस, और दूसरा जो है ना सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं जैसा करेंगे मादूद हो गया वैसा। जी बिल्कुल। ठीक हो। तो और तालिबतन कहना होगा तो फिर जो है ना सलासता नहीं कहेंगे, सलासा कहेंगे और उसको अशराता कहेंगे फिर, ओके, और फिर आगे तालिबत वो वैसे ही रहेगा वो फिर। और सिंगुलर आएगा। हाँ, वो सिंगुलर आएगा 13 से लेकर 19 तक। 13 से लेकर क्या आएगा? 19 तक है ये फॉर्मूला, सिंगुलर आएगा। ठीक हो। ये सिंगुलर वाला। ये एक और चीज, इसमें 3 से लेके 10 तक इधर आगे क्रॉस लगाया हुआ है, तो हाँ, वही बता रहे हैं ना, अपोजिट बता रहे हैं। क्रॉस का मतलब वही है कि अपोजिट आएगा, ये बता रहे हैं वो। हमने रूल बताया कि नहीं, वही अपोजिट आएगा। सेम सेम आएगा तो उन्होंने राइट टिक किया है ना, ओके, और सेम सेम नहीं आएगा बल्कि अपोजिट आएगा तो उसको क्रॉस किया हुआ क्रॉस उन्होंने, किया हुआ है। इशारा दिया दोनों उन्होंने में सिंबल के तौर पर, है ना। तो वो चीज़ हमने समझ ली है कि अपोजिट तो जो है ना पहला टुकड़ा जो है ना अपोजिट चलेगा। अदद का पहला टुकड़ा क्या होगा? अपोजिट चलेगा। ये होगा 19 तक का रूल। अब जो है ना 20 से लेकर ऑनवर्ड्स, 20 से लेकर कहाँ तक चलेगा ये रूल? 99 तक चलेगा ये, है ना। बल्कि हाँ बिल्कुल, ये देखिए तो 99 तक चलेगा ये, है ना। तो ये देखिएगा इसमें क्या रूल है? 20 इशरून तालिबन इशरून तालिबतन, दोनों के अंदर इशरून ही है। हमने इसके पहले भी ये रूल पढ़ा हुआ है गुज़िश्ता हफ्ते कि इसको हम जो है ना डेकेड कहते हैं कि नहीं, इनको हम उक़ूद कहते हैं कि नहीं, इसको इशरून सलासून अरबाउन ये गिनती पढ़ी है हमने। इसके पहले हमने पढ़ी कि नहीं? बिल्कुल। इनको हमने कहा था उक़ूद है ये। तो इनमें मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के अंदर इशरून ही कहते हैं हम, सलासून ही कहते हैं। ये 90 तक 30 तक ही चलेगा ये, ऐसा वही रूल है। तो मेल हो या फीमेल हो, है ना, हम कहेंगे कि इशरून तालिबन इशरून तालिबतन,
इशरून तालिबन, इशरून तालिबतन। तो इशरून वाला जो फार्मूला है इसके पहले पढ़ा हमने वो उकूद कहते हैं ऐसी गिनती को ना, 20, 30, 40, 50, ऐसा 90 तक ये ऐसे ही चलती है नहीं। तो अगर आपको कहना होगा कि 20 घर है ना, 20 हाउसेस, तो हम कहेंगे इशरून बैतन। लेकिन 20 कार्स तो कहेंगे इशरून सय्यारतन। तो दोनों हालत में इशरून ही इस्तेमाल कर रहे हैं हम, चाहे बैतन कहे चाहे सय्यारतन कहे, है नहीं, तो दोनों वही होगा। लेकिन आप जो है ना वाहिदुन, हाँ देखिएगा हर जगह 1 और 2 वाला फार्मूला हर जगह चेंज होता रहता है। 1 और 2 शुरू से चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं कि नहीं आप, गिनती का फार्मूला 1 और 2 से शुरू हुआ, तो 1 और 2 हमेशा जो है ना अलग बैठते हैं। हर किसी का 1 और 2, हर एक का 1 और 2 जो है ना वो डिफरेंट है दूसरे हिस्से, है नहीं। तो वाहिदुन व इशरून तालिबन, वाहिदुन व इशरून, 21 स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे हम, वाहिदुन व इशरून तालिबन। और 20 फीमेल स्टूडेंट है तो कहेंगे तो वाहिदुन का मुअन्नस बना देंगे एहदा, और इशरून हमेशा इशरून ही रहेगा, वो इशरून हमेशा वो चेंज नहीं होगा। वो उक़ूद वाला जो अल्फाज है, इशरून, सलासून, अरबाउन, है ना, तिसून तक वो सेम रहेगा, है ना। तो कहेंगे कि भी 21 हाउसेस तो कहेंगे वाहिदुन व इशरून बैतन। क्या कहेंगे हम, 21 हाउसेस को क्या कहेंगे हम, वाहिदुन व इशरून बैतन। और 21 कार्स तो हम वाहिदुन का मुअन्नस क्या बनाएंगे, एहदा। वाहिदुन का मुअन्नस क्या बनाएंगे हम, हम कहेंगे एहदा व इशरून सय्यारतन, एहदा व इशरून। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, वाहिदुन व इशरून और एहदा व इशरून, है कि नहीं, जी बिल्कुल ठीक है कि नहीं। वाहिदुन का मुअन्नस वाहिदतुन, वाहिदुन का मुअन्नस क्या है, हाँ, और वाहिदतुन वहां से 1 और 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पर वाहिदुन का मुअन्नस वाहिदतुन व इशरून नहीं कहेंगे आप, एहदा कहना पड़ेगा अब यहाँ पर, है ना। उसको यहाँ नहीं लाएंगे हम, हाँ यहाँ पर इसीलिए कह रहा हूँ कि उसको यहाँ नहीं लाएंगे हम। तो वाहिदुन व इशरून। इसी तरह 22 तो हम कहेंगे इस्नाने व इशरून तालिबन, इस्नाने व इशरून तालिबन। और फीमेल स्टूडेंट हो तो कहेंगे इस्नताने, इस्नाने का ये सेम है ना। तो वो कोई मसला नहीं है, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें जो है ना इस्तेमाल करने के बाद ही जो है ना समझ में आ जाती है बातें। जब हम पढ़ते रहेंगे तो ये जो है ना इस्तेमाल करने से जो है ना बातें समझ में आती है ना, स्टक होकर नहीं रहना है आपने। अच्छा, इस्नताने व इशरून तालिबतन, इस्नताने व इशरून तालिबतन, 22 स्टूडेंट। अब सलासतुन व इशरून, फिर वही अपोजिट चल गया हमारा, 3 से लेकर, अब है ना, यहाँ से 23 से 30 तक, हाँ ये रोल जो है हमारा वही 29 तक, 29 है नहीं। तो सलासतुन व इशरून तालिबन, तो तालिबन चूंकि मुदक्कर है तो हम कह रहे हैं सलासतुन, और इशरून में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, वो खुद सेम रख रहे हैं, है ना। तो फीमेल स्टूडेंट, मेल स्टूडेंट तो कहेंगे सलासतुन व इशरून तालिबन, और फीमेल स्टूडेंट है तो क्या कहेंगे हम, सलासतुन नहीं कहेंगे, अब हम सलासुन कहेंगे हम, सलासुन व इशरून। तो हम अदद के पहले हिस्से को, जो अदद के पहले टुकड़े को चेंज करना हमने, बस यहाँ पर भी चेंज करने की बारी आ रही, क्या कर रहे हैं हम, बस अदद के पहले टुकड़े को चेंज करना है। दूसरा टुकड़ा जो ना सेम रहेगा। मादूद मुदक्कर है तो उसको मुदक्कर रखेंगे, मादूद मुअन्नस है तो उसको मुअन्नस रखेंगे। पहले टुकड़े को अपोजिट करना है सिर्फ, बस उतना ही। छोटी सी बात याद रखिएगा आप। क्या बात है याद रखना है इब्राहिम साहब, मोटी सी छोटी सी बात है ना। बुनियादी बात क्या याद रखना है इसमें, अदद मादूद में 2 टुकड़े वाले, 2 टुकड़े अदद मादूद में याद रखना है। जब नंबर या गिनती जो है ना 2 टुकड़े में आ रही, पहला बस पहले टुकड़े को ही चेंज करना है आपने, दूसरे टुकड़े को चेंज नहीं, उसको चेंज नहीं करना, उसको छेड़ना नहीं है, उसको सेम रखने का है। मादूद मुदक्कर है तो मुदक्कर रखना है, और मादूद मुअन्नस है तो मुअन्नस रखना है। सिर्फ पहले टुकड़े को चेंज करना है आपने, बस ये मोटी सी बात रखना है। ज्यादातर लोग इसी में परेशान होते हैं, है नहीं, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, तो अब ये रूल चलेगा फिर आगे तक सेम, सलासतुन व इशरून, सलासून व इशरून, अरबाअतुन व इशरून, अरबाउन व इशरून, मेल फीमेल के हिसाब से। तो ये कहाँ तक चल रहा है हमारा ये, तो तिसअतुन व इशरून, है कि नहीं, कहाँ तक चला ये, हाँ। अब सलासून तालिबन, सलासून तालिबतन, तो वही रूल आगे चल रहा है फिर। अब तो 29 तक अगर आपने समझ लिया तो सारा आगे तक समझ लिया आपने। फिर समझ आ रही है बात आप लोग, 29 तक अगर समझ लिए तो वही रूल आगे भी जा रहा है, फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वही रूल आगे हो रहा। तो सलासून तालिबन और सलासून तालिबतन, है ना। और अगर आपको कहना होगा कि भी 31 स्टूडेंट, तो आप कैसे कहेंगे, वही रूल जो हमने पढ़ा है 21, है नहीं, 21 वाहिदुन व हाँ। तो हम 21 स्टूडेंट तो क्या कहेंगे हम,
واحد وعشرون ثلاثون واحد 31 واحد وثلاثون طالبا اور 31 فیمیل اسٹوڈنٹ تو کیا کہیں گے احدا احدى احدا و احدى ثلاثون ثلاثون طالبۃ طالبة احدى ثلاثون طالبة 21 ہاؤسز تو کیا کہیں گے ہم 21 ہاؤسز 21 واحد واحد وعشرون بیتا وعشرون بیتا واحد وعشرون وعشرون بیتا جیسے موصوف ویسے صفت ہاں واحد و اثنان دو کے اندر 3 سے پھر چینج کرنا واحد ہم نے. وعشرون تو بیتا 21 ہاؤسز کو کیا کہنا ہم نے پھر واحد واحد وعشرون بیتا بیتا اور 21 کارز تو اب ہم واحد نہیں کہیں گے احدى احدا وعشرون کہیں گے اب ہم. واحد کا سیارة مؤنث کہاں ہے کیا استعمال کریں گے اب ہم احدى تو ہم 21 کارز کیا کہیں گے ہم احدا و 31 کارز تو کیا کہیں گے ہم احدا و ثلاثون احدى وثلاثون واحد و سيارة ثلاثون بیتا احدا و ثلاثون احدى سیارة وثلاثون سيارة ہے کہ نہیں اچھا اور 32 ہاؤسز تو کیا کہیں گے ہم 32 ہاؤسز تو کیا کہیں گے اثنان ہم اثنان نہیں اثنان وعشرون بيت اثنان وعشرون بیتا اثنان وعشرون اثنان وعشرون بیتا 20 بلکہ 30 میں چل رہے ہیں ہم اثنان و ثلاثون اثنان وثلاثون ہے نا اور بیتا جی اور 32 کارز تو کیا کہیں گے ہم اثنان کا معنی اثنتان تو 32 کارز تو کیا کہیں گے ہم اثنتان اثنتان و ثلاثون اثنتان وثلاثون سیارتن سيارة ہے تو بیتن سیارتن دونوں یاد رکھیے گا ایک مذکر لفظ ایک مؤنث لفظ تاکہ جو ہے نا ہر جگہ اسی کو استعمال کریں یاد رکھنے کے لیے بیتن لفظ بیت کو استعمال کیجیے اور سیارہ کو استعمال کیجیے تاکہ ہر جگہ جو ہے نا گنتی کا فارمولا اسی کے ذریعے سے آپ یاد رکھیے پھر اب جو ہے نا یہ واحد اور اثنان کراس ہو گیا ہمارا اب 3 سے لے کر پھر 29 تک ہے نا 33 سے لے کر 39 تک 33 سے لے کر 39 تک ہوگا پھر 40 شروع ہو جائے گا تو اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ 33 ہاؤسز تو کیسے کہیں گے اب ہم اب رول واپس پھر وہی آئے گا عدد کے پہلے ٹکڑے کو اپوزٹ کریں گے یہاں سے ہم جب بھی 3 1 اور 2 کے اندر سیم چلائیں گے میل ہے تو میل فیمیل ہے تو فیمیل 3 سے لے کر جو ہے نا آپ چینج کرنا ہے عدد کا پہلا ٹکڑا تو 33 جی 33 ہاؤسز ثلاثة وثلاثون بیتا بیتن اور واحد استعمال کرنا ہے منصوب استعمال کرنا بیتا ہے نہیں واحد اور منصوب استعمال کرنا ہے تو اب اپوزٹ اور 33 کارز تو کیا کہیں گے ہم ثلاثون وثلاثون سیارتن ہاں منصوب استعمال کریں گے ثلاثون کہیں گے اب یہاں پر ثلاثون میں تو کوئی فرق نہیں پڑنا 20 30 40 تو سیم رہے گا نا عقود والا ہے کہ نہیں عقود ہے تو وہ ان میں کچھ اس میں دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ سب کے ساتھ ایسے ہی چلنا ہے تو اور ویسے بھی ہم کو جو ہے نا عدد کا پہلا ٹکڑا ہی چینج کرنا عدد کا جو ہے نا دوسرا ٹکڑا چینج نہیں کرنا فرسٹ ٹکڑا چینج کرنا ہے صرف ہے کہ نہیں تو پھر یہ رول آگے چلے گا 30 40 50 60 70 اور 80 اور 90 اور یہاں 90 تک یہ رول چلے گا 90 تک یہی ٹھیک ہے اب جو ہے نا 100 کے اندر جو ہے نا اب یہاں منصوب نہیں پڑھیں گے مجرور پڑھیں گے میں تو طالبین پڑھیں گے اب یہاں پر میں تو طالبن نہیں پڑھیں گے پہلے کہہ رہے تھے 90 طالبن کیا کر رہے تھے ہم یہاں پر 90 اب یہاں پر جو ہے نا میں تو طالبن نہیں کہیں گے میتن جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں استعمال ہوتا ہے یہاں تو مجرور پڑھا جاتا ہے یہ تو کہیں گے ہم میں تو طالبین کیا کہیں گے ہم ہاں میں تو طالبین اور مؤنث ہے تب بھی میں تو طالبتن تو میتن میں کوئی فرق نہیں آنا ہے وہ ہاں مضاف الیہ ہے باقی تو میتن ہی رہے گا تو میں تو طالبین میں تو طالبتن دونوں میل مذکر مؤنث ہے کہ نہیں دونوں لیکن میتن تو ویسے رہنا ہے لیکن اس کے بعد جو لفظ استعمال ہو رہا مجرور میں تو طالبین تو 100 گھر تو کیسے کہیں گے ہم 100 ہاؤسز تو کیسے کہیں گے ہم بیتن کہیں گے ہم واحد استعمال کرنا ہے میں تو بیتن کہیں گے ہم ہے نا اور 100 کارز تو کیا کہیں گے ہم میں تو سیارتن تو یہ میں تو سیارتن واحد اور مجرور میں تو سیارتن ہاں اس کو رٹنا پڑے گا آپ کو ایسا رول یاد نہیں رہے گا آپ کو ہاں اس کو یاد رکھنا اس کو زبان پہ 10-20 مرتبہ بولنا پڑے گا آپ کو صرف میں تو بیتن میں تو سیارتن ایسا بولنا پڑے گا آپ کو زبان پہ تب یاد رہنا ہے اس کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے
बार बार बार-बार उसको repeat जुबान में करना बोलना पड़ेगा। पड़ेगा 20-25 मरतबा। मैं तो बैतिन, मैं तो सैयारतिन, सही आ रहा मैं तो रजोलिन, मैं तो मरातिन, है कि नहीं? जी समझ रहा है नहीं? बिल्कुल तो उसको बोलेंगे 20-25 मरतबा तब याद होगा, वो वैसा याद नहीं होना है आपको वो, है नहीं? तो अब देखिए 101 तो कहेंगे मैं तो तालिबिन व तालिबुन, ऐसा कहेंगे। अब हम 101 को क्या कहेंगे? मैं तो तालिबिन व तालिबुन मैं तालिबिन व तालिबुन। 101 ना, 100 मैं तो तालिबिन मैं तो तालिब व तालिबुन, ऐसा कहेंगे। अब 101 स्टूडेंट तो कहेंगे मैं तो तालिबिन व तालिबुन, ऐसा कहेंगे अब हम। हाँ, मैं तो तालिबिन मैं तो तालिबिन व तालिबुन, है नहीं? तो देखिएगा, तो ये ऐसे ही चलेगा। मैं तो तालिबिन व तालिबान, मैं तुन व सलात। अब यहाँ पर देखिएगा 1 और 2 हमेशा जो है ना डिफरेंट रहता है हर जगह पर। मैं तो तालिबिन व तालिबुन, तालिब है ना? और किताब में है आपके, जब देखेंगे तो उसमें ये चीज़ है, पूरा वो है। मैं तुम देखिए, आप मैं तो तालिबिन देखिए, उसके बाद लिखा हुआ है, हाँ जी मैं तो तालिबिन व तालिबुन। है कि नहीं? जी अच्छा, तो 1 और 2 ऐसा पढ़ेंगे, मैं तो तालिबिन व तालिबानी, है नहीं? जी और मुअन्नस वही पढ़ेंगे, मैं तो तालिबिन व तालिबतुन, और मैं तो तालिबतिन व तालिबतान, मेल और फीमेल। और अब जो है ना 103 तो कहेंगे मैं अतुन। अब यहाँ पर मैं तो तुल्लाबिन व सलासतुन नहीं कहेंगे हम, है ना? 103 स्टूडेंट्स को हम कैसे पढ़ा जाएगा ये? 103 स्टूडेंट मैं तो तालिबिन व सलासतुन नहीं कहेंगे, मैं अतुन व सलासतु तुल्लाबिन, ये इस अंदाज में पढ़ा जाएगा अब 3 से लेकर। अच्छा ये मैं 1 तो और 2 वो डिफरेंट सोलह था सौ बस 1 और 2 जो है ना डिफरेंट रहता है हर जगह पर, है नहीं? तो अब ये देखिएगा 103 स्टूडेंट तो अब ऐसा नहीं कहेंगे मैं तो तालिबिन व सलासतुन नहीं कहेंगे, जैसे कि 1 और 2 में कह रहे थे मैं तो तालिबिन व तालिबुन करेंगे नहीं हम। जी जी और मैं तो तालिबिन व तालिबानी, है ना? अब यहाँ पर 3 के अंदर मैं तो तालिबिन व सलासतुन नहीं कहेंगे, जी मैं अतुन व सलासतु तुल्लाबिन। मिअतुन व सलासतु तुल्लाब हाँ, मैं अतुन व सलासतु तुल्लाबिन। अब यहाँ पे चूंकि दोबारा सलासतु तुल्लाबिन, अरबातु तुल्लाबिन, खमसतु तुल्लाबिन, तो उसके पहले मैतुन लगा रहे हैं, तो मैं अतुन व सलासतु तुल्लाबिन। यहाँ पे दोबारा जमा आ गया हाँ, सलासतुन के अंदर हम जमा ही इस्तेमाल कर रहे चुके ना, 3 से जब हमने शुरू किया था तो वो सलासतु तुल्लाबिन, सलासतु कुतुबिन, है ना, सलासतु सय्यारातिन, है ना? तो उसको जो है ना आपने जो है जब ऐसा बोलकर जुबान पर चढ़ाना है, उसको बार बार पढ़ना है आपने। अच्छा वहाँ पे भी ऐसे 1 to 10 में ऐसा रूल था और यहाँ पे भी 101 से 110 जी सिमिलर था तो वो जो है ना जब हम इस्तेमाल करेंगे तब आएगी ये गिनती का जो रूल है, वो जी, क्या जी। है, जब हम इस्तेमाल करने से आएगा ये, ऐसा रूल लिखने से नहीं आएगा, है ना? सही अच्छा, तो ऑनवर्ड चलेगा मैतुन व अरबातु तुल्लाबिन। मैतुन 104 स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? मैतुन मिअतुन व अर्बअतु व तुल्लाबिन। अरबातु तुल्लाबिन, है ना? मिअतुन व और अर्बअतु फीमेल होगा तो मैतुन व अरबाउ तालिबातिन, वो रूल जो आ गया, अरबातु तुल्लाबिन अरबाउ तालिबातिन, वो रूल आ गया वापस ना, यहाँ पर चल रहा है कि नहीं साथ में हमारा। 3 स्टूडेंट को क्या कह रहे थे हम? हाँ जनाब, 3 स्टूडेंट्स को क्या कह रहे थे हम मुज़क्कर और मुअन्नस में? 3 स्टूडेंट्स में सलासतो तुल्लाबिन, और फीमेल में कह रहे थे सलासो तालिबातिन। तो वही रूल है यहाँ पर भी, मैतुन व अरबाओ तालिबातिन, मैतुन व अरबातो तुल्लाबिन। तो अरबातो तुल्लाबिन अरबाओ तालिबातिन, वही रूल यहाँ पर आया हुआ है वापस, जो वहाँ पर हमने 3 और 4 में पढ़ा था। ऑनवर्ड्स वैसे रहेगा फिर। तो 105 को पढ़ेंगे हम, मैतुन व खमसतो। अब मैं मेल बोलता हूँ, फीमेल बोलिए। मैतुन व खमसतो तुल्लाबिन, मैतुन खमसतो तुल्लाबिन, फीमेल बोलिए। मेल स्टूडेंट्स। हाँ, और फीमेल बोलिए आप। मिअतुन व हाँ। खम मिअतुन व खमसुन व खमसो तालिबातिन, व खमसु तालिबात हाँ, खमसतो तुल्लाबिन खमसो तालिबातिन, मुदाफिल है ना वो, तो सही है नहीं? इब्राहिम साहब, मैं मेल वाला बोलता हूँ, फीमेल वाला बोलिए। मैतुन व सित्ततो तुल्लाबिन, मैतुन व सित्ततो तुल्लाबिन, मैतुन व सित्ततो तुल्लाबिन, 106। मिअतुन व आप फीमेल वाली शक्ल बोलिए। हाँ, मैतुन तो मैतुन ही रहेगा ना? मिअतुन तो जी जी, मिअतुन। तो मैतुन व सित्ततो तुल्लाबिन का फीमेल शक्ल बोलिए। मिअतुन सित्ततुन तुल्लाबतिन। नहीं, ठीक से बोलिए गौर करके। मैतुन व सित्त, हाँ मिअतुन व सित्ता बोलिए जो आता है। तुल्लाबिन। मिअतुन व सित्ता व तुल्लाबिन। मने मुअन्नस का लफ्ज क्या इस्तेमाल होगा? तुल्लाब तो मुज़क्कर वाला लफ्ज है ना,
मुदक्कर है कि नहीं तुल्लाब तालिबातन तालिबात, तो बोलिए फिर उसको मिअतु मिअतुन व मिअतुन व हाँ, सित्ता व सित्तु तालिबातिन, मिअतुन व सित्तुन व तालिबातिन बस व सित्तु तालिबातिन, बस सित्तु तालिबातिन ये मुदाफिले की स्टाइल में पढ़ना, सित्तु तालिबातिन, खम्सु तालिबातिन, खम्सु अरबउ मिअतु तालिबातिन, सित्तु तालिबातिन हाँ, मिअतु सित्तु तालिबातिन मिअतुन व मिअतुन व सित्तु तालिबातिन, मिअतुन व सित्तु तालिबातिन ऐसा पढ़ेंगे इसको, मिअतुन है ना। तो मैं 107 मिअतुन व सबअतु तुल्लाबिन, मिअतुन वनिसाम मिअतुन व सबअतु तुल्लाबिन, तो मुअन्नस वाली शक्ल क्या होगी, मिअतुन व सबअ तालिबातिन, ठीक है। 108 को कहेंगे मिअतुन व समानियतु तुल्लाबिन, मिअतुन व समानियतु, तुल्लाबिन हाँ, तो उसको क्या कहेंगे हम, मिअतुन व समानी तालिबातिन, है ना। मिअतु व ये समानी मुदक्कर की शक्ल है समानी, मुअन्नस है इसका समानिया, समानिया है ना। अच्छा यहाँ पे अच्छा। ये थोड़ा चेंज है समानी। हाँ, असल में जब या ड्रॉप करते हैं तो वहां पर जेर लगाते हैं, समानीन पढ़ते हैं। फिर जब या ड्रॉप करते हैं ना, जब उसके आगे कोई लफ्ज ना हो तो या ड्रॉप करके पढ़ते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि आगे लफ्ज है यहाँ पर तो वो या बाकी रह रही है यहाँ पर। जब आगे कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे हम तो या को जो है ना ड्रॉप कर देते हैं, उसकी जगह पर कसरा लगा देते हैं, समानीन पढ़ते हैं वहाँ पर, है ना। अच्छा, तो 10 देखिएगा, 9 देखिएगा, 109 मिअतुन व तिसअतु तुल्लाबिन, मिअतुन व तिसअतु तुल्लाबिन, तो मुअन्नस की शक्ल बोलिए आप इसकी, मिअतुन व तिसअ तालिबातिन, मिअतुन व तिसअ तालिबातिन। और 110 तो हम कहेंगे मिअतुन व अशरतु तुल्लाबिन, मिअतुन व अशरतु तुल्लाबिन, तो मुअन्नस की शक्ल बोलिए, मिअतुन मिअतुन व अशरु तालिबातिन, व अशरु तालिबातिन, मिअतुन व अशरु, तालिबातिन, हाँ, तो मुअन्नस को मुदक्कर बना देने का है वहाँ पर, है ना, अशरतु नहीं कहेंगे हम वहाँ पर। अच्छा, 101 तो कहेंगे मिअतुन व अहद अशर तालिबन, मिअतुन को ऐड कर रहे हैं, अदरवाइज शुरू में 11 को हम ऐसे ही पढ़ लेते, अहद अशरा और इतना अशरा, 101 की बात कर रहे हैं, नहीं 111 ना, 111 को क्या पढ़ेंगे, मिअतुन व अहद अशरा तालिबन, अहद अशरा तालिबन जो पहले पढ़ा था वैसी है, जो पहले शुरू में हमने अहद अशरा तालिबन नहीं पढ़ा कि नहीं, 11 स्टूडेंट के लिए क्या पढ़ा हमने, अहद अशरा और इहदा अशरा था, ऐसा पढ़ा था हमने, ये 11 12 में पढ़ा 11 और 12 के अंदर, है ना, इतना अशरा और इतनता अशरा था, मेल फीमेल दोनों चेंज हो रहा है। तो यार ये जो 11 12 111 वह मिअतुन ऐड कर रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं फिर, लेकिन हम वही पढ़ रहे तो 111 को हम क्या पढ़ेंगे, 11 को वैसे पढ़ेंगे जो पहले पढ़ रहे थे, मिअतुन ऐड करेंगे सिर्फ, है ना। तो मिअतुन व अहद अशरा तालिबन, मिअतुन व अहद अशरा तालिबन, और फीमेल की शक्ल पढ़ेंगे मिअतुन व इहदा अशरता तालिबतन, वहां पर भी वही पढ़ रहे थे, इहदा अशरता, अहद अशरा तालिबन, इहदा अशरता तालिबतन, यहाँ भी सिर्फ वाहिद है, यानी वहाँ भी वाहिद था, यहाँ भी वाहिद, जी जी। अच्छा, और इतनानी, अच्छा 200 को हम क्या, अच्छा मिअतुन का मतलब 100, 200 को क्या कहेंगे, मिअतानी, मिअतानी, है नहीं। लेकिन जब हम 100 का मतलब, मिअतानी का मतलब 200, लेकिन आपको कहना होगा 200 स्टूडेंट, 200 हाउसेस, 200 कार्स, तो मिअतानी के अंदर जो नून है वो ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि मुदाफ के अंदाज में, मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल हो ना, तो मुदाफ के अंदर नून को ड्रॉप करके पढ़ते हैं, ये रूल है ना। तो हम कहेंगे मिअतान तालिबिन नहीं कहेंगे हम, मिअता तालिबिन, अच्छा नून नहीं पढ़ते हैं। मुदाफ जब बनाते हैं लफ्ज को, कोई भी लफ्ज को जो डुअल हो, जब मुदाफ इस्तेमाल करते हैं तो डुअल वाली नून गिरा के पढ़ते हैं हमेशा, हर जगह ये रूल अप्लीकेबल रहता है, हर जगह ये रूल चलता है। आप ये जो है ना, जब आगे कहीं पर भी पढ़ेंगे तो ये रूल चलेगा। डुअल के अंदर नून है कि नहीं हर जगह पर, किताबानी, किताबाने है कि नहीं, लेकिन इसी लफ्ज किताबाने को अगर आप मुदाफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो नून ड्रॉप करके पढ़ेंगे, कहेंगे कि खालिद की 2 किताबें, तो किताबाने खालिदिन नहीं कहेंगे, किताबा खालिदिन, नून को ड्रॉप करके पढ़ते हैं। ये रूल हमेशा हर जगह पर चलना है, ये कॉमन रूल है, यूनिवर्सल रूल है। ये डुअल के अंदर जो नून है, जब वो मुदाफ की शक्ल में नून ड्रॉप हो जाता है, वो ये रूल यूनिवर्सल है, हर जगह चलता है ये रूल, है ना। तो खालिद की 2 किताबें तो हम किताबा खालिदिन कहेंगे, किताबाने खालिदिन नहीं कहेंगे, है कि नहीं। खालिद के 2 घर तो बैताने खालिदिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, बैता खालिदिन, नून को गिरा पढ़ेंगे हम, है ना। तो बैताने खालिदिन नहीं बल्कि बैता खालिदिन, तो नून को गिरा कर पढ़ना है। तो यहाँ पर भी इसी तरह मिअताने का नून ड्रॉप करेंगे, मुजाफ की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है ना यहाँ पर मिअताने,
ہے کہ نہیں, اور طالبن مضاف الیہ استعمال ہو رہا ہے. تو میاتان طالبین نہیں کہیں گے ہم, کیا کہیں گے ہم؟ میاتا طالبین اور میاتا طالبتن, میاتا طالبین اور میاتا طالبتن. اچھا 300 کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ ثلاث میت طالبین. 300 کو کیا کہیں گے ہم؟ ٹھیک ہے, 200 کو کہیں گے میاتان ہے نا, میاتان, اور 300 کو کہیں گے ثلاث میاتی, ثلاث میت طالبین ثلاث میت طالبین ہے نا, اور ثلاث میت طالبتن, دونوں کے اندر ایسے ہی چلنا ہے. اور 400 کو کیا کہیں گے پھر؟ اربع میت طالبین اربع میت طالبتن, 400 طالبین ہے نا, تو ویسے ہی چلے گا پھر. یہ بھی 500 بھی ویسے ہی بولیں گے, 600 بھی. کلیئر ہے یہ بات؟ آگے چلے ہم. جی تو 900 تک ایسے ہی چلے گا, ہے نا. 900 طالبین 900 طالبتن, ہے کہ نہیں. اچھا اب 1000 کو کیا کہیں گے؟ الفن. کیا کہیں گے ہم؟ الفن. ہاں, تو اب جیسے کہ ہم میں تو طالبین پڑھ رہے تھے, تو ویسے یہاں پر پڑھیں گے الف طالبین یا الف طالبتن. یہ بات سمجھ میں آ گئی کیا؟ جی 100 کو کیا کہہ رہے تھے؟ 100 ہاؤسز تو کیا کہہ رہے ہیں ہم جناب ولی صاحب؟ 100 ہاؤسز, میں تو بیتن واحد استعمال کریں گے. میں تو بیتن, میں تو طالبین کرے گی نہیں ہم, میں تو بیتن, میں تو طالبین کہہ رہے. تو طالبین کو یاد رکھیے کم از کم. میں تو طالبین اور میں تو طالبتن ویسے یاد رکھیے, دونوں طالبین طالبتن یاد رکھیے, ہے نا. تو میں تو طالبین اور میں تو ہاں, اور 1000 اسٹوڈنٹ تو کیسے پڑھنا چاہیے پھر؟ اسی اسٹائل میں پڑھیں گے, الف طالبین اور الف طالبتن, الف طالبین ہے کہ نہیں. مضاف الیہ کی شکل میں پڑھیں گے اس کو ہم, ہے نا. مجرور پڑھ رہے ہیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے نا. جی میں تو طالبین الف طالبین ویسے ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اچھا 200 اسٹوڈنٹ کو کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ میں اتا طالبین, نون گرا کر, میں اتا نے. 100 میتن, 200 میتانی, ہے نا. 1000 الفن الفن اور 2000 الفان, الفان, ہے نا, ڈوئل والا. لیکن جب مضاف کریں نون ڈراپ کر دیں گے, اگر آگے جو ہے لفظ استعمال کریں گے تو ہم کہیں گے کہ بھی 2000 اسٹوڈنٹ تو کیسے کہیں گے ہم؟ الفا طالبین, الفان طالبین نہیں کہیں گے ہم, الفا طالبین, نون گرائیں گے ہم وہاں پر. الفان طالبین نہیں کہیں گے, الفا طالبین, الفا طالبین اور الفا طالبتن, ہے نا. مجرور استعمال ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, وہ ہے نہیں. تو اس کو پڑھیں گے جب ہم زبان پہ استعمال کریں گے تو آئے گا وہ. اچھا 2000 کو کہیں گے الفا نے, تو الفا طالبین الفا طالبتن, ہے نا. پھر جو ہے نا 3 سے وہی ہے, ثلاثت آلاف ہے نا, ثلاثت آلاف طالبین اور ثلاثت آلاف طالبتن, ہے نا. ثلاثت تو کریں گی نا, ثلاثت طلابین کریں گی نا پہلے, تو یہاں پر بھی ثلاثت آلافین کہیں گے یہاں پر. ہاں آلاف, الف کی جمع آلاف, ہے نا. 3000 کو کیا کہیں گے ہم؟ آلاف. الف کی جمع آلاف, الف کی جمع آلاف, تو ہم کہیں گے ثلاثت آلاف طالبین, ثلاثت آلاف طالبین اور ثلاثت آلاف طالبتن, ہے نا. تو 3000 کو کیا کہیں گے ہم؟ ثلاثت آلافن, ثلاثت ہاں 3000 اسٹوڈنٹ, ثلاثت آلاف طالبین, ثلاثت آلاف طالبتن, ہے نا. تو جب ہم آگے بڑھیں گے تو آپ سے یہ بار بار جو ہے نا گنتی والا جو ہے نا پوچھتے رہیں گے تو آپ کو یاد ہوگا, پوچھتے رہنے سے یاد ہو جائے گا پھر آپ کو, ہے نا. جب آپ زبان پہ چڑھائیں گے تو کیا ہے, پورا ایک ساتھ نہیں یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے, تھوڑا تھوڑا یاد رکھیے گا, ہے نا. ہر ایک میں سے ایک سیمپل یاد رکھیے صرف, ہے کہ نہیں. پوری گنتی 10 تک 9 تک یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. 3 یاد رکھیے, پھر ہر ایک کا 3 3 3 یاد رکھیے. 1 اور 2 تو جو ہے نا آپ کو پتا ہے وہ جو ہے نا سب سے ڈفرینٹ ہے. 1 2 1 2 1 2 1 2 سب کا ڈفرینٹ ہے. 3 سے لے کر 9, 3 سے لے کر 9 ایسے چینج ہو رہا وہ, ہے نا. تو 3 کو یاد رکھیے, 9 تک ویسے چلے گا وہ, ہے نا. اچھا تو 4000 کہیں گے اربعۃ آلافن, لیکن ہے نا, لیکن 4000 اسٹوڈنٹ کہیں گے اربعۃ آلاف طالبین, طالبین آلافن اربعۃ آلاف طالبین, ہے نا. اچھا اور طالبتن میل و فیمیل دونوں ایسے ہی پڑھیں گے, اربعۃ آلاف طالبین اربعۃ آلاف طالبتن, ہے نا. تو پھر 5000 کو بھی ہم ایسے ہی پڑھیں گے, خمسۃ آلاف طالبین اور خمسۃ آلاف, تو ویسے پڑھیں گے 6 کو بھی,
پڑھیے. 6,000 طالب ہاں و6,000 طالبة. ویری گڈ. اور 7,000 کو پڑھیے. 7,000 طالب و7,000 طالبة. اور 8,000 کو پڑھیے. 8,000 طالب ہاں. و8,000 طالبة. اور 9,000 کو پڑھیے. 9,000 طالب و9,000 طالبة. اور 10,000 کو پڑھیے. 10,000 طالب و10,000 طالبة. یہ ہو گیا 10 تک ہے نا. 10,000 ہے نا 10,000. 20,000 کو کیا کہیں گے ہم؟ 20,000 20,000 طالبین. 20,000 طالب. طالبین اور 20,000 طالبۃ. اور 30,000 کو کیا کہیں گے؟ 30,000 طالبین اور 30,000 طالبۃ. اور 40,000 کو کیا کہیں گے ہم؟ 40,000 طالبین 40,000 طالبۃ. اور 50,000 کو کیا کہیں گے ہم؟ 50,000 طالب ہاں و50,000 طالبة. دیکھیے 50,000 اور 1 لاکھ 100,000. تو 100,000 کو کیا کہیں گے؟ 100,000 طالبین. اب ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں لاکھ. 1 لاکھ. 1 لاکھ یعنی 100,000 ہوتا ہے کہ نہیں؟ 1 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ 100,000 کہتے ہیں ہم انگلش میں ایسا نا. ہم انڈیا پاکستان میں 1 لاکھ استعمال کرتے ہیں نا، لیکن دوسری جگہوں پہ لاکھ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ملین پر ڈائریکٹ جاتا ہے. ہاں تو لاکھ کا مطلب ہوتا ہے 100,000 ہے نا. تو 100,000 کو عربی میں کہیں گے 100,000 طالبین. 100,000 ہو رہا کہ نہیں؟ 100,000 ہو رہا کہ نہیں؟ 100,000 ہے نا. تو 100,000 ہو رہا نا. 100,000 طالبین 100,000 طالبین 100,000 طالبۃ. تو 100,000 کا مطلب 1 لاکھ. 100,000 100,000 کا مطلب کیا ہو رہا؟ 100,000 ایسے ہی ہے نا. اچھا اور 2 لاکھ کو کیا کہیں گے ہم؟ 200,000 کو مئتا. چونکہ ہے وہ مئتا نہیں لیکن نون گرا کے پڑھیں گے تو 100,000 طالبین 100,000 طالبۃ. تو نون جو ہے نا ہر جگہ گرانا ہے ڈوئل کا ہے نا، چاہے مئتانے کے اندر ہو چاہے الفانے کے اندر ہو ہے نا. نون جو ہے نا گرا کے پڑھتے ہیں اس کو. اچھا 300,000 کیا کہیں گے ہم؟ 300,000 طالبین 300,000 طالب. 300,000 طالبین 300,000 طالبین ہے نا. اور 400,000 یعنی 4 لاکھ کو کیا کہیں گے ہم؟ 400,000 طالبین یا طالبۃ ہے نا. تو اب یہ دیکھیے گا 6543 کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ دیکھیے گا کیا لکھا ہوا ہے 6543 6543 گنتی کیا لکھی ہے 6543. تو 6543 کو پڑھنے کے 2 طریقے یہ بتا رہے ہیں. اگر وہ جو لفظ مؤنث ہے تو اس کا طریقہ اور مذکر ہے تو دیکھیں ریال لفظ مذکر ہے جی بالکل. اور روبیہ جو لفظ ہے مؤنث ہے نا. تو اگر لفظ جو گنتی جو کرنسی ہم استعمال کر رہے ہیں جو بھی استعمال کر رہے ہیں معدود کو اگر مؤنث مذکر استعمال کر رہے ہیں تو اپوزٹ استعمال کریں گے. شروع میں ثلاثتن کہیں گے ہم ہے کہ نہیں؟ آخر سے شروع کریں. ہاں جی. تو ہم کہیں گے ثلاثتن و اربعون و 500 و 6,000 ریال. ایسا پڑھیں گے اس کو. اب گنتی کو اس گنتی کو 6543 کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے گا ریال بول رہے ہیں یا روپیہ بول رہے ہیں؟ ریال مذکر ہے جناب ابراہیم صاحب؟ ریال مذکر ہے کہ نہیں جی. اور روبیہ مؤنث ہے کہ نہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ بھی جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں جس معدود کو استعمال کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث. تو اگر وہ مذکر ہے تو شروع کہاں سے کریں گے؟ مؤنث سے. اور اگر وہ مؤنث ہے تو شروع کہاں کریں گے؟ مذکر سے. تو ہم کہیں گے دیکھیے روبیۃ المؤنث ہے تو شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ ثلاثن سے. روبیۃ المؤنث ہے کہ نہیں جی. تو شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ مذکر سے. ثلاثن کہہ رہے ہیں ہم ثلاثتن نہیں. اور ریالن جو ہے نا مؤنث ہے. ریالن کیا ہے؟ نہیں مؤنث نہیں مذکر ہے نا. اچھا توجہ کیجیے گا. ریالن کیا ہے؟ مذکر ہے. اچھا تو جب مذکر ہے تو ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ اس کو مؤنث استعمال کریں گے ثلاثتن. تو ہم کہیں گے ثلاثتن و 40 و 500 و 6,000 ریال. اور روپیے کی شکل میں کہیں گے ثلاثن و 40 و 500 و 6,000 روبیۃ ہے نا. یہ طریقہ ہو گیا. تو یہ دیکھیے گا 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو عدد ایک معدود. اس کے اندر 2 ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں گنتی کے معاملے کے اندر؟ 2 چیزیں ہیں. ایک عدد ایک معدود ہے کہ نہیں؟ پورا وہ عدد ہی ہے. سارا کچھ عدد ہی ہے. پورا عدد ہی ہے. ہاں جو گنتی کا مطلب عدد ہے اور جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ معدود.
ہے نا, اتنی بات ہے وہ. تو عدد کا فارمولا اور معدود کا فارمولا الگ سے انہوں نے خلاصہ کر دیا ہوا ہے کہ بھی دیکھیے گا نمبر 1 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بھی احوال العدد, عدد کو پڑھنے کے جو طریقے ہیں وہ دیکھیے. تو ایک نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. تو 1 کے اندر کیا کہہ رہے ہیں, العددان, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دونوں نمبر ہیں واحد و اثنان. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس میں جی واحد عدد کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. نمبر 1 کے اندر کیا بتایا, العددان واحد و اثنان, یہ جو دو نمبر ہیں واحد اور اثنان, یہ جو دو نمبر ہیں علی وفق المعدود, معدود کے حساب سے رہیں گے. معدود کے ساتھ ٹک کیا کہ نہیں ایسا, جی بالکل. اس ٹک کیا ایسا کریکٹ ٹک کیا رائٹ ٹک کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معدود کے حساب سے رہے گا. مذکر ہے تو مذکر, مؤنث ہے تو مؤنث. ٹھیک ہو گیا. یہ سمری ایک طرح کی جی جی جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہے دراصل یہ. تو یہ رول ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ 1 اور 2 والا معاملہ کیا ہے, اکارڈنگ رہے گا ٹو, اکارڈنگ ٹو معدود, جس میں ٹک ہے, جس میں ٹک ہے کہ نہیں, اکارڈنگ ٹو معدود. مذکر ہے تو مذکر, مؤنث ہے تو مؤنث, ہے نا. صرف دو نمبر واحد و اثنان. اور العدد من 3 الى 10, اور 3 سے لے کر 10 تک, 3 سے لے کر 10 تک, یہ کہہ رہے کہ علی عکس معدود, معدود کا اپوزٹ چلے گا. وہ معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث, معدود مؤنث ہے تو یہ مذکر. تو اسی لیے اس کو جو ہے نا کراس کیا ہے کہ نہیں, کراس کیا ہے, اس کا مطلب اپوزٹ چلنا. تو یہ 3 سے لے کر 10 تک کا رول بتایا انہوں نے, من 3 الى 10. یہ بات ہوگی نمبر 2 کے اندر. تو پہلا رول کیا پڑا, نمبر 1 کے اندر کیا بول رہے ہیں جناب علی صاحب, 1 اور 2 سیم سے عدد اور معدود, عدد اور معدود کا خلاصہ یاد رکھیے گا تو کنفیوژن نہیں ہوگا آپ کو. 4 باتیں اس میں انہوں نے بتائی ہیں. پہلی بات کیا بتائی ہے انہوں نے نمبر 1 میں, عدد و معدود سیم رہیں گے. 1 اور 2 میں عدد و معدود سیم رہیں گے. 1 اور 2 کے اندر عدد اور معدود سیم رہیں گے. ایک بات. نمبر 2 کے اندر کیا بتائی انہوں نے, کہاں سے لے کر کہاں تک جو اپوزٹ رہے گا, 10 تک عدد و معدود اپوزٹ رہیں گے ایک دوسرے کے. 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود ایک دوسرے کے اپوزٹ رہیں گے. عدد کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا اپوزٹ چلے گا, ٹھیک ہے نا. ایک ہی ٹکڑا ہے اس میں تو وہی چلے گا اپوزٹ. نمبر 3 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ العددان 11 و 12. دیکھ رہے ہیں یہ 2 نمبرز ہیں 11 اور 12, وہی بات جو 1 اور 2 کے اندر جو رول ہے نا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الجزءان علی وفق المعدود, وہی بات جو نمبر 1 میں کہی تھی, وہی بات جو نمبر 1 میں کہی تھی. واحد اور اثنان جو ہے نا ہمیشہ سیم چلتا کہ نہیں, جی جی 1 اور 2 سیم چلے گا, عدد معدود سیم, مذکر ہے تو مذکر, مؤنث ہے تو مؤنث. تو اسی طرح 11 اور 12 بھی, چونکہ 1 اور 2 آ گیا دونوں میں, پھر تو 11 اور 12 بھی جو ہے نا پھر دونوں سیم رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی معدود مذکر ہے تو عدد بھی مذکر ہے, اور معدود مؤنث ہے تو عدد بھی. تو 11 بکس تو کیسے کہیں گے ہم, 11 بکس کیسے کہنا چاہیے ہم نے, 11 کتابن, 11 کتابن, چونکہ کتابن جو ہے مذکر ہے, معدود چونکہ مذکر ہے تو ہم دونوں کو کیا پڑھیں گے, ہم مذکر, دونوں کو مذکر پڑھیں گے. تو ہم کہیں گے 11 کتابن. اور 11 کارز تو کیا کہیں گے ہم, اب سیارتن کہیں گے وہاں پر نا, 11 اب ہم کہہ رہے ہیں سیارتن نا, تو معدود مؤنث کہہ رہے ہیں کہ نہیں, تو عدد اس کے موافق رہے گا, سیم رہے گا. تو ہم 11 نہیں کہیں گے, ہم 11 طالب, دونوں کو مؤنث بنائیں گے, 11 سیارتن, 11 طیارتن. کلیئر ہو کی بات نمبر 3 کی. نمبر 3 اس کا مطلب 1 اور 2 اور 11 اور 12 جو ہے نا علی وفق المعدود چلے گا, مطلب اکارڈنگ چلے گا نا, معدود کے ساتھ معدود کے مطابق رہے گا. علی وفق المعدود یعنی معدود کے مطابق رہے گا. میل ہے تو میل, فیمیل ہے تو فیمیل. 1 اور 2 کے اندر بھی یہی بات کہی انہوں نے, اور 11 اور 12 کے اندر بھی یہی بات کہی. تو اس بات 2 باتوں کو ذہن میں رکھیے اچھی طرح, 1 اور 2 اور 11 اور 12. ہاں جناب ابراہیم صاحب, کیا بات کہی جا رہی ہے بتائیے گا. اس میں کہا جا رہا ہے 1 2 اور 11 اور 12 کے اندر ان کے عدد معدود سیم رہیں گے, دونوں سے سیم رہیں گے, ہاں بالکل سیم رہیں گے, ہے نا. تو یہ نمبر 3 پر بات سمجھ میں آ گئی. جی, اور جو ہے نا 3 سے لے کر 10 تک اپوزٹ چلیں گے. یہ 3 باتیں آ گئی ذہن میں. جی, چوتھی بات دیکھیے گا, العدد من 13 الى 19. اب ہم جو ہے نا 12 تک پہنچ گئے کہ نہیں, اب 13 سے لے کر 19 تک کا رول, 13 سے لے کے 19 تک کا رول کا پہلا حصہ, ہاں پہلا حصہ جو ہے نا چینج ہوگا, دوسرا حصہ معدود سیم رہے گا. جی, پہلا حصہ جو ہے نا ڈفرنٹ ہوگا, اپوزٹ ہوگا, اور دوسرا جو ٹکڑا ہے اس میں 2 ٹکڑے آ رہے ہیں کہ نہیں,
सलासा है ना, 2 टुकड़े आ रहे हैं 11 से लेके 20 19 तक। 2 टुकड़े हैं 13 से लेकर 19 तक 2 टुकड़े आ रहे हैं उसमें ना। जी जी तो पहला टुकड़ा अपोजिट रहेगा मादूद के बस, और जी। सेकंड टुकड़ा जो है ना उसके Opposite, रहेगा, इसलिए कि same पहले, रहेगा। इसलिए इन्होंने पहले को क्रॉस किया और सेकंड को जो है ना टिक किया, ठीक करेक्ट है कि नहीं। इसका मतलब 2 टुकड़े हैं इसके। इसके अंदर जो है ना 2 टुकड़े आ रहे हैं कि नहीं, तो पहला टुकड़ा क्रॉस रहेगा यानी अपोजिट चलेगा, इसलिए Opposite क्रॉस चलेगा। किया उन्होंने, और दूसरा जो टुकड़ा है वो सेम सेम रहेगा माशाल्लाह अच्छी समरी मादूद के हिसाब से। जी जी मादूद मुदक्कर है तो दूसरा टुकड़ा मुदक्कर, मादूद मोनस है दूसरा टुकड़ा मोनस, तो वो टिक रहेगा, वो दोनों सेम है नहीं। तो इसका मतलब 4 बातें होगी वली साहब इसमें, जी बिल्कुल। 1 से लेकर 1 और 2, 1 और 2, जी मैं बता और उसके बाद बताइए आप एक- अपने जहन से, 1 और 2 जहन से बताइए 1 और 2 में 1 और 2 का रूल क्या समझा हमने। सेम जैसा अदद वैसे मौजूद। असल में ये खुलासा ही जो है ना समझने का है और कुछ नहीं है। इसका मतलब आपने सबक समझ लिया, अगर आपने ये समझ लिया, ये पॉइंट समझ लिया, तो आपने पूरा लेसन समझ लिया फिर जी। तो इसको बता दीजिए जहन से। 1 और 2 यानी अदद और मौजूद सेम सेम सेम, वेरी गुड। इसी तरह फिर 3 से 10 और सबकी मिसालें जो है ना लिखी हुई ऑलरेडी रेफरेंस के लिए, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आपको अलग से डायरी नोटबुक लिखने की जरूरत नहीं, किताब में मौजूद है वो तो आपके पास। अगर आपको डाउट है, मिसाल देखना, एग्जाम्पल देखना है, तो ऑलरेडी है वहां पर सब, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, दिमाग में बिठाने की जरूरत है हमें अब, है ना। अच्छा, और फिर इसके बाद जो तो 3 से लेकर अब 3 से लेकर कहाँ तक, 3 से लेकर 10 तक 10 तक, 3 से लेकर 10 तक क्या रूल है 3 से लेकर 10 तक। अगर मादूद मुअन्नस हो तो अदद मुज़क्कर होगा, और अगर मादूद मुज़क्कर हो तो अदद मुअन्नस हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई अला अक्सिल मादूद, अपोजिट होगा। अब अल आदाद अला अक्सिल मादूद, अब अल आदद अला अक्सिल मादूद, ऐसा बोलिए, अल आदद अला अक्सिल मादूद, अक्स का मतलब अपोजिट, अल-अदद अला अक्सिल मादूद ऐसा बोलना चाहिए ताकि याद रहे वो। सलासा से लेकर आशरा तक क्या बोलेंगे हम, सलासा से लेकर आशरा तक का क्या रूल है, अल आदद अला अक्सिल मादूद, अल-अददु अला अला अक्सिल मादूद। मादूद, अदद जो है ना अल-अददु मादूद के अला अक्स अक्सिल रहेगा, मादूद। अपोजिट रहेगा, सही है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो अपोजिट कहेंगे अक्सिल मादूद, अक्सिल और सेम सेम रहेगा, अकॉर्डिंग रहेगा तो वफ़क़ल मादूद, वक्फन वफ़क़ल मादूद अकॉर्डिंग टू, यानी सेम एस, वफ़क़ल मुवाफ़क़त करना। मुआफ़क़त। हाँ, तो समझ आएंगे, वफ़क़ल अक्स का मतलब अपोजिट, वफ़ का मतलब मुताबिक, मुताबिक। है ना। तो ये दो रहेंगे, तो वफ़क़ल Antonyms and मादूद, synonyms। वफ़क़ल मादूद अक्सिल अला अक्सिल मादूद, अक्सिल मादूद। है नहीं। तो अला वफ़क़ल मादूद अला अक्सिल मादूद, ऐसा याद रखिएगा, अला वफ़क़ल मादूद अला अक्सिल मादूद। अला अक्सिल मादूद, वफ़क़ल यानी सेम 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 सेम, और मुवाफ़क़त अक्स का मतलब अपोजिट, करना। है कि नहीं। ये 4 अच्छा, और चौथा, तीसरा हाँ तीसरा जो है बोलिएगा, उसमें 11 12 11 और 12 वाली बात आ गई, फिर उसमें 2 टुकड़े होंगे, 2 टुकड़े होंगे, और दोनों के एक दोनों साथ वक्फल ऐसे जैसे। मादूद है। दोनों मादूद के हिसाब से रहेंगे, दोनों वक्फल मादूद। अला वफ़क़ल मादूद रहेंगे, अला वक्फल मुदक्कर है तो मुदक्कर दोनों, और मोनस है तो मुअन्नस। मादूद। अगर वो हमें देखना है मादूद को मादूद को किस में देना है, हमें सारा गिनती के अंदर सारा खेल किसका है, मादूद को मादूद जो है ना वो प्ले कर रहा है रोल वहां पर सारा कुछ। जी, जी। गिनती के अंदर जो गड़बड़, जो गिनती के अंदर जो कंसिडरेशन हो रहा है, किस चीज का कंसिडरेशन हो रहा है, मादूद को। सिर्फ मादूद का हो रहा है, जिस चीज को हम काउंट कर रहे हैं उसी को देखना है सिर्फ, बिल्कुल और गिनती को उसके हिसाब से जो है ना घुमाना है हमें, सही बात। गिनती उसके ताबे रहेगी मादूद के। तो बिल्कुल। मेन प्लेयर वही है वहां पर, मादूद है वहां पर, उस चीज को साथ चेंज उसी को ध्यान में रखना हमें। मादूद जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम काउंट कर रहे हैं, जी तो वो काउंट जो चीज काउंट हो रही है उसको देखना है, उस लफ्ज को, जिस लफ्ज को हम काउंट मादूद के तौर पर या काउंट कर रहे हैं, जिसकी गिनती कर रहे हैं, उसको देखना हमने। ठीक उसके हिसाब से सारा जो है ना रूल जो है ना हमारा फिक्स हो रहा है वहां पर। सही। अच्छा, नंबर 4 पर क्या रूल पड़ा हमने, अभी ये तो 11 और 12 और 13 से लेकर 19 तक, 30 से इसमें 2 टुकड़े हैं। इसमें 2 टुकड़े हैं। दो तो टुकड़े, अब पहला टुकड़ा ये मैं बताता हूँ। हाँ, जी। बता दें। मादूद जी बिल्कुल, उसमें है 2 टुकड़े हैं। 2 टुकड़े हैं, उसमें जो पहला टुकड़ा है वो अला अक्सिल मादूद अगर होगा, अक्सिल मादूद होगा, और बस। जो दूसरा टुकड़ा है वो अला वो वफ़क़ल वक्फल मादूद मादूद होगा। जी जी बिल्कुल, बस इतना भी याद रखे तो काफी। अला पहला टुकड़ा जो है ना सिर्फ अला अक्सिल मादूद होगा, दूसरे इसको चेंज करने की नहीं, जरूरत वो भी याद रखने के याद लिए, रखिए इसको। वर्ड हाँ। रखने के तो लिए। अला अक्सिल मादूद अला वफ़क़ल मादूद, अला अक्सिल मादूद अला वफ़क़ल मादूद, वक़्फ़िल मादूद। वो यानी मुआफ़क़त, वक्फिल मादूद। वफ़क़ल मुआफ़क़त कहते हैं कि ना उर्दू में, मुआफ़क़त कहते हैं और मादूद। अक्स कहते हैं, है ना। तो इन दोनों को याद रखना है। अच्छा, अभी ये बात होगी आदत की, और मादूद का नंबर 2 के अंदर अहवालुल मादूद। तो अब अदद की बात समझ में आ गई, 4 बातें, 4 पॉइंट अदद में समझ में आ गए हमारे। और मादूद के अंदर जो है ना ये बता रहे हैं कि मादूद वाला मामला जो है ना 3 से लेकर 10 तक जो जमा क्या है, होगा। जमउन व मजरूरुन। मादूद को कैसे पढ़ेंगे हम, मादूद को भी जमा समझना है कि नहीं हमें। 3 से लेकर कहीं आप देख रहे हैं कहीं मादूद को हम मंसूब पढ़ रहे हैं, वाहिद पढ़ रहे हैं,
कहीं मंसूब को हम जमा पढ़ रहे हैं, मजरूर पढ़ रहे हैं, कहीं हम मादूद को वाहिद पढ़ रहे हैं, मंसूब पढ़ रहे हैं, कहीं मजरूर पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो मादूद को कहाँ पर जो है ना मंसूब पढ़ना है, कहाँ मजरूर पढ़ना है, कहाँ वाहिद पढ़ना है, कहाँ जमा पढ़ना। तो ये मादूद की हालत है। अब समरी मादूद की आ रही है। मादूद की समरी, तो मादूद की समरी क्या है, रूल क्या है, 3 से लेकर 10 तक जो है ना जमा पढ़ेंगे और मजरूर पढ़ेंगे। मादूद को क्या पढ़ेंगे हम 3 से लेकर 10 तक? मादूद को कैसे पढ़ा जाएगा 3 से लेकर 10 तक? जमा और मजरूर, ये याद रखना है, मादूद की कंडीशन याद रखना है हमें। जमा और मजरूर। आपने देखा कि नहीं, कहीं हम जो है ना मादूद को वाहिद भाई पढ़ रहे हैं, कहीं जमा पढ़ रहे हैं, कहीं वाहिद पढ़ रहे हैं, कहीं जमा पढ़ रहे हैं, कहीं मंसूब पढ़ रहे हैं, कहीं मजरूर पढ़ रहे हैं। उसके रूल्स हैं। तो उसका रूल आपको जो है ना एक जो है ना नटशेल में बता दिया है इन्होंने आपको याद रखने के लिए कि 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर कैसे पढ़ेंगे हम उसको, जमा और मजरूर। हाँ जमा और मजरूर। कुतुबिन, बुयूतिन, है ना, सय्यारातिन, जमा और मजरूर, मजल्लातिन, जमा और मजरूर, जमा और मजरूर। ये बात होगी। नंबर 2 के अंदर आप बता रहे कि 11 से लेकर 99 तक 3 to 10 समझिए ना हम, जमा और 3 to 10 क्या है जनाब इब्राहिम साहब? 3 to 10 मादूद, जमा और मजरूर। हाँ 3 to 10 जो है ना मादूद का वाला रूल याद रखिएगा, जमा और मजरूर। और 11 से लेकर 99 तक ये सिंगुलर होगा, मुफर्रद और बिल्कुल हाईवे पे चला गया एक्सप्रेस। 11 से लेकर 99 तक बीच में ब्रेक नहीं है, तो वो क्या करेगा, मुफरद और मंसूब, मतलब सिंगुलर और मंसूब, है कि नहीं? तो कहाँ से 11 से शुरू आ रहा है ये? 11 से 99। हाँ, अहद अशरा किताबन, अहद अशरा मुफरद मंसूब है, किताबन, अहद अशरा किताबन, है कि नहीं? मंसूब, वाहिद और मंसूब है। तो अब अहद अशरा से आपने जो शुरू किया, या एहदा अशरत किताबन, एहदा अशरा सय्यारतन, एहदा अशरत सय्यारतन, लेकिन पढ़ेंगे हम उसको वाहिदी, क्या मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, पढ़ना क्या हमने उसको वाहिदी पढ़ना और मंसूबी पढ़ना है। और ये 11 से जो गाड़ी छूटेगी तो कहाँ आखिरी स्टॉप लेगी, वो 99 पर, बीच में कहीं स्टॉप नहीं है इसका, कहाँ जाके रुकना है इसने, 99 पर। तो 99 भी अगर आपको कहना होगा तो वो 99 है ना, 99 है ना, 99 या 99 है कि नहीं, 99 या 99 मादूद के हिसाब से। लेकिन तालिबन, तालिबतन, मुफरद और मंसूब, 99 तालिबन, 99 तालिबन, और 99 तालिबतन, लेकिन वो रहेगा तालिबन तालिबतन, मुफरद और मंसूब, है कि नहीं? तो 3 रूल आगे कि नहीं इसमें। तो इसका मतलब मादूद जो है ना या तो मजरूर है या तो मजरूर है या तो मंसूब है कि नहीं? या तो मजरूर पढ़ रहे हैं या तो मंसूब पढ़ रहे हैं, मरफू नहीं पढ़ा जाएगा, कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। मादूद हमेशा या तो मजरूर आएगा या तो मंसूब आएगा, है कि नहीं? मरफू नहीं आएगा कभी भी, है ना। तो एक जगह मंसूब के साथ मुफरद और एक जगह मजरूर के साथ मुफरद है नी, और मजरूर के साथ जो है ना जमा है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो ये याद होगा। तो ये खत्म हो गया, ये तो कहानी यहाँ पर, ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पर मजरूर। तो पूरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट आपने जो है ना एक उसका ओवरव्यू देख लिया आदत का, ताकि आपको रेफरेंस के लिए जो है ना अभी जरूरत पड़ी तो ये पूरा लेसन के अंदर ही इन्होंने पूरा डाल दिया हुआ है, एवरीथिंग उन्होंने पूरा इंक्लूड कर दिया हुआ है लेसन के अंदर मौजूद है। एक्सक्लूसिव, हाँ बिल्कुल, पूरा जो है ना सारा जितनी गिनती इसमें जितनी शक्लें बनती थी उन्होंने डाल दी हुई सारी। रेफरेंस अगर आपको देखना हो उसका तो जाके देख सकते हो, लेकिन हम जो है ना उसको बोलना पड़ेगा हमें, जब हम बोलेंगे तो याद होगा, है कि नहीं? तो वो थोड़ा थोड़ा जब एक चीज समझ में आ जाए तो फिर नई चीज याद कीजिए उसमें से, है ना। एक साथ बहुत सारी चीजें याद नहीं कीजिए गिनती में, आदत मादूद के अंदर क्या करना हमने, थोड़ी थोड़ी याद करना है हमने। पहले जो है ना 1 और 2 को अच्छी तरह मजबूत कर लीजिए, फिर 3 से जो है ना 3 से लेकर 9 तक जो है ना याद कर लीजिए अच्छी तरह, 3 से लेकर 10 तक। उसके बाद जो है ना आगे बढ़िए। ऐसा जो है ना जो ब्रेकअप दिया हुआ है ना, उन्हीं ब्रेक को मजबूत कीजिए आप, है कि नहीं? तो जब भी जो है ना वो उतना पोर्शन आए तो वो फौरन रूल समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? तो उसको जो है ना हम इंशाल्लाह अगले लेसन में आपसे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो इन्होंने एक्सरसाइज में देते भी रहेंगे इंशाल्लाह। ये अगले लेसन में ये रिपीट करेंगे इसको गिनती को, है कि नहीं? और हम जो है ना अरे एटलीस्ट हमने रूल तो पढ़ लिया है कि नहीं, है कि नहीं? हाँ, 3 स्टूडेंट अगर कहना हो तो कैसे कहेंगे? 3 स्टूडेंट,
सिंपल सी बात. ثلاث طالب ثلاث طالبتن. अच्छा, अब हमने बुनियादी रूल क्या पढ़ा है? मादूद मेन अदद प्लेयर और कौन है मादूद इसमें? अदद और मादूद डिफरेंट होगा इसमें. हाँ नहीं, मेन प्लेयर कौन है? मादूद. मादूद. मादूद के हिसाब से हम जो है ना डिफाइन करते हैं चीजों को ना, अदद को. अदद को मुज़क्कर मुअन्नस किसके हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं? मादूद के मुताबिक. मादूद को ही देखना पड़ता हमें. तो मादूद को देखिए और अदद को उसके हिसाब से जो है ना अकॉर्डिंगली जो है ना आप एडजस्ट कीजिए, उसके हिसाब से उसको जो है ना वो कीजिए. तो 3 स्टूडेंट्स अगर आपको बोलना हो मसलन, तो आप जो है ना स्टूडेंट मेल या फीमेल कोई भी शक्ल इस्तेमाल कीजिए, कोई भी एक शक्ल बोलिए. तो क्या कैसे बोलना चाहिए हमने? सलासतुन तुल्लाबिन. आपको क्या जनाब इब्राहिम साहब, वली साहब, 3 स्टूडेंट्स तो कैसे बोलना चाहिए हमने? ثلاثة طلاب. छोड़ दीजिए, अब किताब को जहन से सलासतुन किताब को हटाइए और जहन में लाइए कि 3 स्टूडेंट को अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलना है उतना याद रखिए. ढेर सारी किताब की बातें याद नहीं रखिए, आपने सिर्फ वो जो है ना रूल सीखने के लिए पढ़ा है किताब, अब उसको साइड में रख के दिमाग में रखना है. तो 3 से लेकर 10 तक का फार्मूला याद रखना आपने. 3 से लेकर मैं 1 और 2 नहीं बताऊंगा, 1 और 2 बहुत सिंपल है. 1 और 2 सिंपल है. तो 3 से लेकर 10 तक को दिमाग में बिठाना है आपने. तो 3 से लेकर 10 तक बोलिए कि 3 घर और 3 गाड़ियां जनाब वली साहब. ثلاثة بيوت वेरी गुड. وثلاث سيارات. ये रूल समझ में आ गया. जी. अब बस इतनी ही बात याद रखिए, आगे कुछ भी याद मत रखिए. अब उसको आगे जो है ना 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10 यहाँ तक जो है ना आप खुद ही बोलिएगा बाद में. तो ये अगर आप चाहते हैं अभी बोलना तो आप बोल सकते हैं, अभी बोल रहे थे. अगर बोलना है तो बोलिए आप. अगर रूल समझ में आ गया कि नहीं हमको? जी रूल समझ में आ जी. गया. पहले बुयूत क्या था, बाब सयारात. हाँ बोलिए. ثلاثة بيوت हाँ أربعة بيوت वेरी गुड, बोलते जाइए. जी जी बिल्कुल, पहले خمسة بيوت बिल्कुल सही. ستة بيوت वेरी गुड, سبعة بيوت वेरी गुड. ثماني بيوت. समानियतो बुयूतिन, समानियत. मुअन्नस लाइए ना हम यहाँ पर. समानियतु. मुअन्नस ला रहे कि नहीं हमारी जगह पर? अरबातो सित्ततो मुअन्नस ला रहे कि नहीं? अच्छा तो यहाँ पे वो तो मुअन्नस तो समानियतो रहेगा. ठीक. मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे कि नहीं हम हमेशा? सलासतो अरबातो खमसतो तो समानियतो है ना, उसको मुअन्नस ही पड़ गया. ऐसा मुदक्कर के अंदर वो चेंज हो रहा सिर्फ है नहीं. ओके. वो बहरहाल उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है, जहाँ गड़बड़ होगी मैं बता दूंगा आपको, आप उसके बारे में बॉदर न करें. चलिए, चीज़ों को जो है ना ग्रेजुअली सीखना है हमें. जी इंशाल्लाह. पूरे जो है ना पूरे शहर का पूरे कंट्री का बोझ नहीं लेना है हमको हमें. जी. हाँ जी, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा है ना. चलिए, तो अच्छा 9 हाउसेज, تسعة بيوت 9 बुयूतिन और 10 हाउसेज, عشرة بيوت. अशरतो बुयूतिन. आप स्टूडेंट के लिए लफ्ज़ तुल्लाब इस्तेमाल कीजिए. तुल्लाब. आप बोलिएगा 3 स्टूडेंट. सलासतु तुल्लाबिन. आप बोलते जाइए ऑनवर्ड्स. सलासतु तुल्लाबिन अरबातु तुल्लाबिन खमसतु तुल्लाबिन सित्ततु तुल्लाबिन समानियतु तुल्लाबिन वेरी गुड. समानियतु तिस्अतु. सबअतु तुल्लाबिन सबअतु तुल्लाबिन समानियतु तुल्लाबिन हाँ, तिस्अतु तुल्लाबिन अशरतु तुल्लाबिन. बस इतना ही याद रखना है, आगे कुछ भी मत याद रखिएगा. इतना ही, जब ये अच्छी तरह ध्यान में बैठ जाए, जुबान पे चढ़ जाए, तो फिर जो है ना मुअन्नस वाली शक्ल को रटिएगा. जब दोनों इस्तेमाल में समझ में आ जाए, जुबान पर किसी हद तक चढ़ जाए, तो फिर जो है ना हम जो है ना 11 शुरू करेंगे. 11 और 12 को नहीं बताने की जरूरत है आपको. 11 और 12 को बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये अकॉर्डिंग चलता है दोनों, उसमें कोई रूल नहीं, उसको साइड में रखिए. फिर 13 से हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे. क्लियर है कि नहीं बात अभी? है कि नहीं? अगर आपको कहना होगा 3 किताबें तो कैसे कहेंगे आप जनाब इब्राहिम साहब? सलासतु किताबिन. किताबिन क्यों कहेंगे हम? 3 अच्छा, किताबें. स्टूडेंट को क्या कह रहे हैं हम? स्टूडेंट को क्या कह रहे हैं? 3 स्टूडेंट को क्या कहा हमने, पहले बताइए मुझे. स्टूडेंट को क्या कहा था हमने, ये पहले बताइए. सलासतु किताबिन. नहीं, स्टूडेंट को क्या कहा था हमने? 3 स्टूडेंट्स को सलासतु तुल्लाबिन. तुल्लाबिन, तो तुल्लाब वाहिदे के जमा जमा है और मजरूर है. मजरूर. तो ये इसका मतलब ये हुआ कि सलासा से अशरा तक जो है ना मादूद को जमा और मजरूर कुतुबिन होगा वो. ये रूल याद रखना हमें. 3 से लेकर 10 तक को क्या मादूद कैसा पढ़ेंगे हम? जमा. अब ये दिमाग में रखना. आप किताब को दिमाग से हटा दीजिए अब, खलास. कुतुबिन. अब अपने जहन में अलग से बिठाइए उसको. स्क्रीन बंद कर देंगे. हाँ बिल्कुल, ये कोई मसला नहीं. बात समझ में आ गई क्या अभी? तो अब 3 किताबें तो क्या कहेंगे हम? सलासतु कुतुबिन. सलासतु कुतुबिन. सलासतु कुतुबिन. क्लियर है बात? जी. हम पढ़ेंगे उसका जो है ना जमा और मजरूर. मजरूर. मादूद क्या पढ़ेंगे हम? जमा और मजरूर. हाँ ऐसे ही पढ़ेंगे हम.
क्लियर है कि नहीं? 3 मस्जिद है तो कैसे कहेंगे हम? सलासतु मसाजिदिन। सर बस मसाजिद कहिए अभी, वो गैर मुनसरिफ है, मसाजिद नहीं मसाजिदा हो जाएगा अदरवाइज वो। लेकिन आपको रूल याद रखना चाहिए कि 3 से लेकर 10 तक आगे के आएगा अंदर ये रूल गैर मुसरफ वो तो वाला। ममनू मिन सर्फ मसाजिद ना, तो मसाजिदीन नहीं पढ़ेंगे, मसाजिदा पढ़ेंगे। ओके। वो रूल अपनी जगह पर फिर आ जाएगा, हर रूल अपनी जगह पर काम करेगा, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये अपना रूल है, लेकिन वो भी अपना रूल है, वो भी अपना हक लेगा, है कि नहीं? तो हर इंसान अपना हक लेगा, है कि? लेकिन वो बाद में जो है ना हमें समझ में आ जाता है कि ये ऐसा क्यों पढ़ना, ऐसा क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि सारे रूल हमारे सामने रहेंगे ना उस वक्त, तो हमें पता है कि ये रूल है, तो उस रूल को भी हम खुद ही अप्लाई कर देंगे कि हमें तो पढ़ा है, हाँ ये तो ममनू मिन सर्फ है लफ्ज़, अच्छा तो ममनू मिन सर्फ में तो कसरा नहीं पढ़ते, तो हम जो है ना खुद ही उसको करेक्ट कर लेंगे, ऑटो करेक्ट हो जाता है फिर। इसमें 2 कसरा होता है। हाँ, तो वो रूल हमने ऑलरेडी मौजूद रहेगा, वो चलेगा हर जगह पर। तो ये बुनियादी तौर पर क्या पढ़ा फिर अभी आपने, याद रखने की क्या बात है आपको? 3 से लेकर 10 तक 3 से लेकर 10 तक मादूद को क्या पढ़ना मादूद, आपने? जमा और मजरूर। जमा मजरूर को पढ़ना है आपने, मादूद को जमा और मजरूर पढ़ना, बस खलास। अब जो है और ना आप अदद जो है है, ना अदद और मादूद अपोजिट चलेंगे। अब जो है ना आप 10-20 अल्फाज को किताब में से निकालिए, अपने नोटबुक में साइड में लिखिए जमा की शक्ल में, उस लफ्ज़ को किताब में से कोई भी लफ्ज़ निकालिए जमा की शक्ल में जो इस्तेमाल हुआ हो किताब के अंदर, है ना, इतने लेसन हमने पिछले पढ़े हुए। तो अगर कोई भी लफ्ज़ उठाइए और लिखिए उसको, लेकिन जमा की शक्ल लिखिए उसको, और उसको सलासतुन अरबातुन के साथ अप्लाई करके जो है ना पढ़िए उसको, है कि नहीं? अब मैंने आपको ब्यूतुन बता दिया, बैत लफ्ज़ बता दिया, मस्जिद बता दिया, इस तरह बेशुमार अल्फाज है हमारे पास। अभी कितने अल्फाज है हमारे पास? अगर कोई ममनू मिन सर्फ में वो छोड़ दीजिए, उसका टेंशन छोड़ दीजिए, तो उसमें हम क्या करते हैं? अब बस आप उसको अभी सुकून करके पढ़िए ज़हन में, है, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो है ना यही रूल पर, इस रूल पर फोकस करना है आपने, सिर्फ आएगा तो उस वक्त इस रूल पर फोकस करना है आपने, सिर्फ जमा पढ़ना है, मजरूर पढ़ना है, ठीक है। है नहीं? तो लेकिन आपने जो है ना 10-20 अल्फाज उसमें से बुक में से निकालना है। अगले हफ्ते बताइएगा मुझे कि भाई आपने कितने आपने तकरीबन जो है ना कम से कम 10 अल्फाज, आपकी जो है ना होमवर्क है आपका ये कि 10 वर्ड्स जो है ना आपने अलग नोटबुक में लिखना है आपने जमा की शक्ल में, और थलासा उसको जो है ना लिख कर जो है ना आपने पढ़ना है सिर्फ अपनी ज़ुबान से, है कि नहीं? अगर आप लिखे तो कोई हर्ज नहीं है, अगर आप लिखे तो भी अच्छी बात है, वो तो आप लिख डालिएगा उसको उठा के, एक लफ्ज़ पकड़िए उसको लिखिए थलासा से लेकर अशरा तक, है ना, या सिर्फ लिखिए उस लफ्ज़ को जमा की शक्ल में और अपनी ज़ुबान से बोल कर देखिए उसको, है कि नहीं? तो इस तरह के आप हमारे पास जो है ना बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे हमें, इस तरह के जी काफ़ी बेशुमार अल्फाज मिलेंगे हमें। किताब, सैयारा, हमने तो लफ्ज़ किताब और सैयारा बता दिया आपको। कलम, हाँ, सितारे के लिए क्या लफ्ज़ है? सितारा, नजम, उसकी जमा क्या आती है? नुजूम। देखिए अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह नुजूम मालूम है। अब 3 सितारे, 4 सितारे, 5 सितारे, 9 सितारे, 10 सितारे। अब देखिए अब नुजूम को आप अपने डायरी में लिख लीजिएगा। तो ऐसे ही जो है ना आप पीछे जितने भी असबाक पढ़े आपने, इनमें खोलिए और कौन से अल्फाज जो है ना जमा की शक्ल में है तो आप उनको लिख डालिए उठा के, और काउंट कीजिए कि सलासा तो जमा मजरूर। हाँ, तो पढ़े कैसे पढ़ेंगे हम? सलासा तो नुजूमिन, ये नजम की, हाँ नजम की जमा जो नुजूम है, तो हम क्या पढ़ेंगे? सलासा तो नुजूमिन। अब फिर ऑनवर्ड्स कैसे पढ़ेंगे? पढ़िए। सलासतु नुजूमिन, अरबाअतु नुजूमिन, खमसतु नुजूमिन, सित्ततु नुजूमिन, अबे देखिएगा सबअतु 5 नुजूमिन, स्टार 6 स्टार, तो खमसतु नुजूमिन, खमसतु, अच्छा है कि नहीं? अरबाअतु नुजूमिन, खमसतु नुजूमिन, सित्ततु नुजूमिन, सबअतु नुजूम, ऐसा। तो ऐसे ही अल्फाज लिखना है आपने, 10 अल्फाज उसमें लिख कर रखिएगा, और मुझे अगले हफ्ते बताइएगा कि देखिएगा मैंने ये 10 वर्ड्स मैंने अप्लाई किए इन पर, है कि नहीं? फिर अगले हफ्ते जो है ना इंशाल्लाह फिर 13 से लेकर 19 तक जो है ना हम देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह टुकड़ों में हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी हमारी। चैप्टर खत्म ही हो गया आज। चैप्टर तो ख़त्म ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसकी प्रैक्टिस का वो मैं शक्ल बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस जरूरी है इसकी। हाँ, वो इंशाल्लाह जब हम साथ में चलेंगे तो चलना है साथ में, है ना? इंशाल्लाह इस्तेमाल से आता है वो, मुझे पता है, वो सिर्फ रूल याद रखने से नहीं आता, जब हम इस्तेमाल करेंगे तभी आएगा। मुझे ऐसे याद हुआ वो, है ना, मैंने कोई रूल तो है मुझे पता, रूल तो सभी को याद होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को रूल पता होता है, जब बोलते हैं तो गलती करते हैं। तो रूल मालूम होने के बावजूद गलती क्यों करता है आदमी? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है उसको। बहुत सारे लोग इंग्लिश ग्रामर के रूल जानते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए जब वो बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, क्योंकि अंदर से डरे हुए रहते हैं वो। हालांकि ग्रामर के रूल बहुत सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह, बहुत सारे लोग हैं जो कि उर्दू मीडियम से होते हैं, लेकिन ग्रामर इंग्लिश का जानते हैं अच्छी तरह।
لیکن وہ ان کے اندر جو ہے کہ اندر سے دہشت رہتی ہے، جب بات کرتے ہیں تو وہ گڑبڑ کرتے ہیں جملوں میں. ہچکچاہٹ. حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا یہ غلط پڑھا تو کہیں گے ہاں یہ غلط ہے، یہ رول تو ایسا نہیں ہے، لیکن پریکٹس نہ ہونے سے ہوتا ہے. تو پریکٹس بھی چاہیے رول کے ساتھ میں. تو ہم جو ہے تو رول سمجھ لیں الحمدللہ، لیکن پریکٹس چاہیے ہم کو. اس میں آج ایک نئی چیز پڑھی تھی کہ جب مثنیٰ مضاف ہوتا تو نون گرا دیتے نون بھی گرا دیتے ہیں جی. وہ ہر جگہ یونیورسل رول رہی ہے، یہ رول جو ہے نا یونیورسل ہے، ہر جگہ چلنا ہے یہ تو ہے یہ انشاءاللہ. چلے اسی پہ اجتماع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.